Hello students, welcome in my channel. Students, in today's lectures we are going to proceed a very important topic of hydrocarbons. So particularly this topic is of standard 11 chapter number 15. As per the request of the students, we are going to start this particular topic. So that is the hydrocarbon. So students, what is the hydrocarbons, this and how this chapter is constructed, just I will be tell you within few minutes, and then we are going to proceed about this chapter. So hydrocarbons, this chapters, in this particular chapters we are going to discuss about the what is the hydrocarbons, then alkane, alkene and alkyne system means actually what, their preparation methods, their physical properties, their chemical properties, and finally the uses of the hydrocarbons. In this way the chapter is constructed. Is it okay? Now in this particular chapter, what is the hydrocarbons, this is the first point and very important points of this particular chapter. The name of the chapter is hydrocarbon. What is the meaning of hydrocarbons, that we are going to understand here. So hydro and carbons, actually this word is prepared by the combination of hydrogen and carbon, correct? So from this you can easily understand that the compounds which form by the combination of hydrogen and carbon known as the hydrocarbons. Understand? So the compounds formed by the combination of hydrogens and carbons. So this is very important, students. So you have to keep in your mind what is hydrocarbons. So hydrocarbons, H and C, generally this bond is present, carbon hydrogen bond, correct? So carbon hydrogen bonds is there. Now students, very important discussions we are going to proceed with respect to hydrocarbons. These hydrocarbons, how the classifications of hydrocarbons takes place. So very important topic. In the beginning itself we are going to start the classifications of hydrocarbons. So the classifications is very important parts of this chapter, and we are going to proceed now. What is the classification of hydrocarbon? So the hydrocarbons are classified as, let us see now classification of hydrocarbon. So I am writing here hydrocarbon. So the hydrocarbons are classified as, very important now, so you have to concentrate here. Hydrocarbons are classified as the open chain hydrocarbons, open chain, and the cyclic hydrocarbons, and this particular open chain hydrocarbons again divided as saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated and unsaturated hydrocarbons. This is very important, students. You have to concentrate here. Saturated hydrocarbons means carbon carbon single bond, and unsaturated means carbon carbon double or carbon carbon triple bond compounds. Okay, now saturated is again divided into the very important classifications, that is the straight chain and branch chain compounds. Straight chain and branch chain compounds. What is the meaning of straight and branch? We are going to discuss with the help of examples afterwards. Now just look it towards the classification. This unsaturated compounds are again divided into straight chain, unsaturated compound, straight chain and branch chain. Again this is divided into straight chain and branch chain. Okay, so straight chain and branch chain, so I will write fully here. So straight chain and branch chain. Okay, and the cyclic compounds, again it is divided into saturated and unsaturated. Here also saturated and unsaturated. And now interesting thing is there, this unsaturated is again divided into two important classes, that is the non-aromatic, aromatic and aromatic. Aromatic and non-aromatic also you can write, no problem. Aromatic and non-aromatic. So this is the simple classifications of the hydrocarbon. So how the hydrocarbons is classified, the chart is there in front of you.
नाउ लुक इट प्रॉपरली हाउ द क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन टेक्स प्लेस। तो बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए लेके आया है, तो कुछ बच्चों ने मैसेज किए थे, कुछ बच्चों ने बताया था कि सर 11th स्टैंडर्ड का कुछ पार्ट चालू कीजिए, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स मुझे दिए थे, तो उसके हिसाब से मैंने अभी ये जो चैप्टर्स है हाइड्रोकार्बन्स ये चालू किया है। तो हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें बहुत से बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो। तो हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर्स है, इसके नाम में ही हमें पता चलता है कि इसमें आगे पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का कॉम्बिनेशंस बनके जो कंपाउंड्स बनने वाले हैं, उनका स्टडी हम हाइड्रोकार्बन्स में करने वाले हैं, या उनको ही हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशंस बनके बनते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन आएगा, अल्कीन आएगा, अल्काइंस आएगा, आगे इस चैप्टर में हमें उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, बहुत सी चीज़ें पढ़ना है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हाइड्रोकार्बन का मीनिंग मालूम होना चाहिए। अभी जब मालूम हो गया मीनिंग इसका कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंपाउंड बनने वाला है उसको हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन दो इंपॉर्टेंट क्लास में किया है, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा पता है कि साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स में। अभी ओपन चेन क्या होते हैं कि जैसे ओपनली हम ओपन या स्ट्रेट चेन्स या उसमें ब्रांच चेन के कंपाउंड जो रहेंगे उसमें साइकिल नहीं रहेगा, तो उसको हम ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ओपन चेन में भी फिर से उसका क्लासिफिकेशंस किया गया है, उसमें पता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये जो नया टर्म है आपको, ये भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अभी इधर आपको मालूम होना चाहिए कि सैचुरेटेड्स का मीनिंग है कि कार्बन कार्बन में दो कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड जब आता है तो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ये और ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की जो फैमिली है, इसको ये हम अल्केन फैमिली बोलते हैं बच्चों, याद रखिए। ये जो इसकी फैमिली है, ये जो फैमिली है इसको ये हम अल्केन फैमिली बोलते हैं, याद रखिए। और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो फैमिली होता है डबल बॉन्ड का, तो इसको हम अल्कीन फैमिली बोलते हैं, अल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो फैमिली होता है उसको हम अल्काइन फैमिली बोलते हैं, अल्काइन फैमिली बोलते हैं। तो ये आपको अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इतना ध्यान में रखिए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फैमिली अल्केन फैमिली है, डबल बॉन्ड का फैमिली का नाम अल्कीन है और ट्रिपल बॉन्ड का फैमिली का नाम अल्काइन है। इतना आ रहा है समझ में। आगे जाएंगे। अभी ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है इसका फिर से क्लासिफिकेशंस होता है, एक स्ट्रेट चेन में होता है और एक ब्रांच चेन में होता है। अब स्ट्रेट चेन में कैसा होता है कि वो स्ट्रेटली रहेगा, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रेट, उसमें कुछ भी टेढ़ा कुछ भी नहीं, ब्रांच उसको स्ट्रेट रहेगा वो स्ट्रक्चर्स, तो उसको स्ट्रेट चेन में बोलते हैं। और ब्रांच में फिर उसको जो स्ट्रेट चेन में उसको फिर अटैचमेंट रहेगा। तो ब्रांचेस जैसे हमारे पेड़ों को अलग अलग ब्रांचेस आते हैं, एक बड़ा सा पेड़ देखेंगे तो उसमें स्ट्रेट जो उसका स्टेम स्ट्रेट रहेगा और उसको बाजू में ब्रांचेस रहेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने वाला है, उसको ब्रांच स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी क्लासिफिकेशन होने वाला है, उसमें भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आपको मिलेंगे और ब्रांच चेन कंपाउंड्स आपको दिखने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हो गया आपका ओपन चेन से रिलेटेड। जो भी हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन रहेगा उसका क्लासिफिकेशन आपको इसमें आना चाहिए। उसके बाद में फिर साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताया। साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो साइकिल्स के फॉर्म में होते हैं, यानी उसमें अटैचमेंट्स क्लोज चेन का होने वाला है, बराबर है, तो उसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। और उसके क्लासिफिकेशंस में फिर बताया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हो गए, कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले भी इसमें कंपाउंड्स मिलते हैं साइक्लिक में भी, याद रखिए। और साइक्लिक के जो अनसैचुरेटेड है उसमें फिर से क्लासिफिकेशंस हुआ है, एक है एरोमेटिक और दूसरा है नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक क्या होता है, तो एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आने वाली है, तो बेंजीन रिंग से रिलेटेड
कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स आने वाले। इसमें एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक्स जो होते हैं उसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होने वाले। एरोमेटिक का मीनिंग क्या है कि उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होती है, उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स आते रहते हैं वो कंपाउंड्स में, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स का सिस्टम इधर होने वाला है। और इधर नॉन एरोमेटिक में भी ऐसे जो इसमें एरोमेटिक रहेगा तो वो नॉन एरोमेटिक रहेगा, तो उसमें एरोमेटिसिटी नहीं रहेगी, यानी उसमें ऐसे डबल और जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड का और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड का सिस्टम उसमें नहीं रहेगा। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हम कहने वाले। तो उसके एग्जांपल्स के जब हम देखेंगे तब आपके वो क्लियर होने वाला है कि कैसे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशंस किस तरह से एक्चुअली किया है। तो ये एक ओवरऑल मैंने चार्ट आपको बता दिया है कि हाइड्रोकार्बन का एक्चुअली क्लासिफिकेशंस होता कैसे। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। ये जो नया टॉपिक हमने चालू किया है कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली क्या है और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशंस एक्चुअली कैसे होता है, तो ये आपके अभी ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सब क्लासिफिकेशंस, मैंने आपको बताया है सब चीज़ें। तो यही आगे हमें प्रोसीड करना है, वन बाय वन हम देखने वाले हैं कि ओपन चेन में फिर ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, साइक्लिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक्स क्या होता है, जैसे कि इसमें स्ट्रेट चेन ब्रांच चेंज भी बताया, वो एक्चुअली होता क्या है, वो एग्जाम्पल से हम देखने वाले। और जब पूरे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स कैसा कंस्ट्रक्ट किया है, और फिर जाके फिर आपके समझ में आएगा कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और ये बनाते कैसे अलग अलग कंपाउंड्स। आ रहा है समझ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर्स। ये हमारा चैप्टर्स का स्टार्टिंग है। तो आपको इतना भी अभी समझ में आ रहा होगा, तो आगे के लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन्स एरोमेटिक्स नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल्स के ज़रिए आपको पूरा ये जो चार्ट है ये भी समझ में आने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।